Hello guys, welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to start first chapter of chemistry for class 9, which is matter in our surrounding. In this chapter I am going to discuss only the introductory part of the chapter and the content which we are going to read in this chapter. Now moving ahead, let us start the introduction of the chapter. So before going further, just have a look around yourself. What do you observe? As we look around, we see a large number of things with different shape, size and colors. Just like we can feel the presence of the air that we breathe, the food that we eat, stones, pen, pencil, clouds, planets, sun, etc. Now what do they have common in all? You will find that they all have mass and they occupy some space. And this is matter. Anything that has a mass and occupies some space is called matter. Starting from a drop of water to even a small particle of sand, everything is matter, whether it is small or it is large. Just like the particle of sand, or it is a huge thing like sun or any other planet. Everything is matter. Now moving ahead, let us discuss the content of this chapter. So in this chapter we are going to read about matter, its definition and characteristics. Also we will read states of matter, interconversion of three states of matter, evaporation, factors affecting evaporation. Next we are going to read about the characteristics of particles of matter. Here mainly we will discuss about the physical characteristics of particles of matter. Chemical characteristics will be discussed later. Starting point wise, the first point is the particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. Let us have an example to understand this topic. Take few crystals of potassium permanganate and put it in a tank full of water. Now what do you observe? You will observe that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liters of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Moving ahead, our next point is particles of matter have space between them. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो कोई भी मैटर हो, कोई भी स्टेट हो, उनके बीच में स्पेस होता है. To understand this topic better, let us have another example. Take a glass of water, put a tablespoon of sugar in it and dissolve it carefully. Now what do you observe? You will observe that the level of water in the glass does not rise. Means अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं, उसका लेवल मार्क करते हैं पानी का कितना है, 1 या 2 स्पून शुगर डालते हैं उसमें हम, और डिज़ोल्व करने के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि वाटर के लेवल में राइज बिल्कुल भी नहीं होता है. जितना पहले लेवल था वाटर का ग्लास में, उतना अब भी है. इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफ़ी स्पेस था, उन्हीं स्पेस के बीच शुगर जाकर फंस गया, उसने अपनी जगह बना ली. सो वी कैन से दैट the particles of matter have space between them. Our next point is particles of matter are in continuous motion. Now let us have another example to understand this point. इसको समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. Take a glass of water again. Now put some drops of
ink in the water. Now what do you observe? You will observe that the ink spreads in whole amount of water, in a whole volume of water, which means that the particles of matter are in continuous motion. Our next point is particles of matter are held together by forces of attraction, which means जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं. इसको समझने के लिए लेट अस हैव एन एग्जांपल. टेक सम आइस क्यूब्स एंड अ ग्लास ऑफ वाटर. नाउ ऑब्जर्व देयर स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू फाइंड? You will find that the shape of solid means ice is rigid while the shape of water can be changed. अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, मतलब जो आइस के पार्टिकल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम उसके शेप को आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं. लेकिन वाटर को हम आसानी से उसके पार्टिकल से अलग कर सकते हैं क्योंकि वो आइस के कंपेरिजन में वीक फोर्स से जुड़ा हुआ होता है. दिस एग्जाम्पल सजेस्ट दैट particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Moving ahead, now we will read about the states of matter. Basically, matter has 5 states and they are solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate, that is BEC. But in our syllabus we are going to read about only solid, liquid and gas. Now we will compare the properties of solid, liquid and gas. Observe the figures given in first row. Now let us read about these particles. The first point is the solids have fixed shape and definite volume. Liquids do not have fixed shape but they have fixed volume. Gases neither have fixed shape nor fixed volume. It means सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी उनका डेफिनेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अ ब्रिक, so the shape of the brick will remain same and also its volume is not going to change. Now take the case of liquid. If we take a glass of liquid, then what happens? अगर हम ये लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम उनका उतना ही रहता है जितना हमने लिया हुआ होता है. गैसेस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो उनका शेप फिक्स है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स है. फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई गैस लेते हो 1 लीटर और उसको किसी एक कंटेनर में बंद करके रखते हो तो वो गैस उस कंटेनर का शेप ले लेगी और पूरा वॉल्यूम उस कंटेनर में फैल जाएगा. अगर वही गैस हम रिलीज़ करते हैं किसी रूम में तो वो गैस उस रूम का शेप ले लेगी और पूरा वॉल्यूम रूम के जितना फैल जाएगा. सो इट मीन्स दैट गैसेज हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम. अगला पॉइंट है interparticle distances are smallest in solid. सॉलिड में as we can see in the figure also जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो सबसे कम है. लिक्विड्स में थोड़ा सा ज़्यादा है, गैसेस में बहुत ज़्यादा है. इंटरपार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर इन लिक्विड एंड दे आर लार्जेस्ट इन गैसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लगभग थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर सकते हैं जो कि नेग्लिजिबल होता है. गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हम गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, टेक द केस ऑफ एलपीजी विच इज़ प्रेजेंट इन आवर हाउस. हमारे घर में जो एलपीजी गैस आती है, सिलेंडर के अंदर छोटे से वॉल्यूम में हम कितनी सारी गैस को कंप्रेस करके डाल देते हैं. सेम केस इज देयर विद सीएनजी एंड अदर सिलेंडर्स. Now next point is high density and do not diffuse. It is the case of solid. सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं करते हैं. लिक्विड्स में द डेंसिटी इज़ लोअर दैन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज़. लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम है और वो डिफ्यूज़ करते हैं. इन द केस ऑफ गैस
डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, जो गैसेस की डेंसिटी है वो सबसे कम है और वो पार्टिकल्स डिफ्यूज करते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, हम उनको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल आइस क्यूब देख लेते हैं हम लोग, पार्टिकल्स आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं। ब्रिक है, हम आसानी से पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते हैं। आयरन बार है, उसके हम पार्टिकल्स को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। सॉलिड की कंपैरिजन में इनके पार्टिकल्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जैसे कि वाटर, हम वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने हाथों से अलग कर सकते हैं बहुत ही कम फोर्स की मदद से। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ गैस, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। गैसेस के जो पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, इतनी कमज़ोर होती है कि नेग्लिजिबल है और वो फ्री रहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं एज वी कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है सॉलिड से ज़्यादा। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेरिजन टू सॉलिड। इन केस ऑफ गैसेस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनमें कोई फोर्स लगता नहीं है एक दूसरे पे, तो वो आसानी से फ्रीली यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। हियर वी आर गोइंग टू रीड हाउ एंड व्हाई डज द स्टेट ऑफ मैटर चेंज। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, liquid to gas, gas to liquid, and again from liquid to solid. Also, it can change from solid to gas directly and from gas to solid directly. Now let us understand this with the help of an example. आइस क्यूब लेते हैं हम लोग, हीट करते हैं उसको। जब हम लोग आइस के पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो उनकी पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो मूव करना शुरू करते हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस उनकी बढ़ने लगती है। जब सॉलिड के पार्टिकल्स की डिस्टेंस बढ़ती है तो वो लिक्विड की कैटेगरी में आ जाते हैं, उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। सेम थिंग हैपन्स जब हम उनको और हीट करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स को हम और ज़्यादा हीट करते हैं तो वो गैस बन जाते हैं। सिमिलरली जब हम गैस के पार्टिकल्स को ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनता है और लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिड बनता है। समटाइम्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस के पार्टिकल्स ठंडे होकर के सीधे सॉलिड बन जाते हैं। सो अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैस इट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इन द सेम वे व्हेन गैस चेंजेस टू लिक्विड इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन and when liquid changes to solid it is called freezing. Sometimes when solid directly changes to gas without changing to liquid is called sublimation, and the reverse, that is when gas changes directly to solid without changing to liquid is called deposition or reverse sublimation. Now the question arises, how does matter change its state? When we heat solid, the particles of solid get energy and they start moving. Due to this motion, they move far apart from one another and result in liquid. Same thing happens when the particles of liquid are heated, they change into gas. जब हम सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जब एक दूसरे से दूर होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सेम थिंग हैपेंस जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, तेज़ी से मूव करते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम थिंग हैपेंस जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होते हैं, लिक्विड को ठंडा करते हैं तो पार्टिकल्स पास आकर के सॉलिड बन जाते हैं।
Now our next topic is latent heat. Latent means hidden. So latent heat, the hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during change of state without rising its temperature. जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो हीट उस सॉलिड के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, उसके बाद जब हम हीट करते हैं सॉलिड को तो सारी की सारी एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है पार्टिकल्स के फोर्सेस को तोड़ने के लिए, उन फोर्सेस को जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब वो फोर्स टूटता है तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब सारे के सारे फोर्सेस टूट जाते हैं सारे पार्टिकल्स की, तो उनका स्टेट का कन्वर्जन हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। और एक बार जब सारे के सारे पार्टिकल्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो अगेन जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो उसको टेम्परेचर बढ़ाने में यूज्ड अप हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी हीट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड को हम जब हीट करते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। उस समय फिर क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के एक दूसरे से जिस फोर्स से वो बंधे हुए हैं वो हीट उस फोर्स ब्रेक करना शुरू कर देता है। जब सारे पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ब्रेक हो जाती है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब गैस में कन्वर्ट होते हैं तो टेम्परेचर अगेन बढ़ना शुरू हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फर्स्टली द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the heat energy required to change 1 kg of solid into liquid without rising temperature is called latent heat of fusion. And the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point without rising its temperature is called latent heat of vaporization. One thing you have to keep it in your mind that during change of states temperature remain constant. It means जब कभी भी स्टेट का कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमें आइस और वाटर दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पे मिल सकते हैं। सेम थिंग इज देयर विद द केस ऑफ लिक्विड एंड गैस। हमें सेम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस दोनों मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर हम हीट करना शुरू करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें वाटर का फेज भी मिलेगा और वेपर फेज भी मिलेगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवोपोरेशन, the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. evaporation एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी लिक्विड के जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले एनर्जी लेकर के वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं, उसको हम evaporation कहते हैं। Our next topic is factors affecting evaporation. The first point is, as we know that evaporation is a surface phenomena, so the rate of evaporation increases with an increase of surface area. जैसा कि हम जानते हैं evaporation एक surface phenomena होता है, इसलिए अगर हम surface area बढ़ा दें तो rate of evaporation बढ़ जाता है। For example, when your mother serves food and it is very hot, then what she does, she spreads the food all over the plate to get it cooled very soon. Same thing happens जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम कपड़े ले जा करके उसको फैला देते हैं, ना कि वैसे मोड़ के रखते हैं। जब हम फैला के रखते हैं कपड़े तो वो जल्दी सूख जाते हैं। सेम थिंग हैपेंस जब हम गलती से पानी गिरा देते हैं फ्लोर पे, तो जल्दी सूखने के लिए, जल्दी इवोपरेट होने के लिए हम उस पानी को फैला देते हैं कपड़े से पूरे फ्लोर पे और वो जल्दी से सूख जाता है। सेम थिंग हैपेंस जब हमें गर्म चाय पीनी होती है जल्दी में, तो क्या करते हैं हम उसको किसी प्लेट में लेकर के फैला देते हैं
जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज with the increase of temperature the more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state। जब हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं, मतलब इवोपरेशन बढ़ जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो अगर एयर में ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट हैं तो अब और ज़्यादा उड़कर उसमें नहीं जा सकते हैं, इवोपरेट नहीं हो पाएंगे। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. It means that if the humidity increases, the rate of evaporation decreases. Next point is wind speed. The higher the wind speed, the more evaporation. जितनी तेज हवा चलेगी उतने ज़्यादा वो वाटर के पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी करेगी। सो विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो increases. Our next topic is evaporation causes cooling. In the process of evaporation, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. evaporation के प्रोसेस में क्या होता है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, जब वो सरफेस के नियर बाय पार्टिकल्स की एनर्जी ले करके उड़ जाते हैं तो सरफेस के जो अब बचे हुए पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए अपने आसपास के नेबरिंग पार्टिकल्स से एनर्जी लेते हैं और जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लूज करके ठंडे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इवेपोरेशन होने से कूलिंग क्रिएट होती है। सो वी कैन से दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। और डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं अगली स्लाइड जो कि है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग की। The surface molecules absorb heat. Step by step we are going to read. First step is the surface molecules absorb heat. Surface के जो molecules हैं वो heat absorb करते हैं. Then increases kinetic energy of molecules, जिससे kinetic energy बढ़ जाती है molecule की और वो उड़ जाते हैं. Overcome force of attraction. The particles whose energy is now increased, they overcome the force of attraction. Energy बढ़ने से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और तोड़ करके स्केप आउट हो जाते हैं। दे स्केप आउट इनटू गैस ऑब्लिक वाटर वेपर। नाउ डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड कॉज कूलिंग। अब नीचे के जो पार्टिकल्स रह गए थे जिनकी एनर्जी लेकर के ऊपर वाले पार्टिकल्स उड़ गए, उनकी एनर्जी कम होती है और वो ठंडे हो जाते हैं। सो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग and it has many applications in our daily lives too. इस फिनोमिना के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल द वर्किंग ऑफ एन अर्थन पॉट और अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड अपॉन दिस फिनोमिना ओनली। द surface of the earthen pot has pores on it and the water particles present in those pores get evaporated and they cause cooling on the surface left behind. In this way, the earthen pot cools the water kept in it. Our next topic is evaporation versus boiling. Now we are going to read the difference between evaporation and boiling. Firstly, evaporation. Evaporation is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into vapor state. evaporation में क्या होता है कि सिर्फ जो surface के particles हैं वो एनर्जी लेकर के वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, while boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk, that is whole of the liquid, change into vapor state. Means boiling में जो सारे पार्टिकल्स हैं मीन्स द होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट।
Our next topic is Kelvin and Celsius scale. Kelvin is the SI unit of temperature. The SI unit of temperature is Kelvin, and 0 degree Celsius is equal to 273.16 Kelvin, and we take 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. To change डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन वी एट 273. इट मीन्स अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें केल्विन में चेंज करना है तो उस डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हम 273 ऐड कर देते हैं. केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस. एटमॉस्फेयर ATM is a unit of measuring pressure exerted by a gas. The SI unit of pressure is called पास्कल. पास्कल प्रेशर की SI यूनिट होती है और हम एटमॉस्फेयर भी यूज़ करते हैं प्रेशर के गैस के द्वारा एक्सर्ट किए गए प्रेशर को नापने के लिए. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल. The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere, that is 1 atm, and is taken as a normal atmospheric pressure. That's all for today. At the end we have some important questions for chapter 1, states of matter. First question is define matter. Second question is a substance has a definite volume but no definite shape. State whether this substance is a solid, a liquid or a gas. Question number 3 is arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles. A. Milk, B. Salt, C. Oxygen. Question number 4 is a substance has neither a fixed shape nor a fixed volume. State whether it is a solid, a liquid or a gas. Question number 5 is the melting point of a substance is below the room temperature. Predict its physical state. Question number 6 is what is vapor. Question number 7 state the effect of surface area on rate of evaporation. Question number 8 is why are we able to sip hot tea faster from saucer rather than from a cup. Question number 9 is what is the SI unit of temperature. Question number 10 is why Kelvin scale of temperature is regarded as better scale on Celsius. That's all. Thank you friends.